Hello, this is Kuldeep in Social channel. Once again, hearty welcome in our English class. This is grammar. Regarding grammar, it is very essential to understand several concepts. As we all know that grammar is the base of the structure of language, we are going to detail about degree of comparison. Degree of comparison is also one of the very essential part for grammar. Okay, आप समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्यों जरूरी है। यहाँ पर क्वालिटीज की बात आती है और जहाँ क्वालिटी की बात आती है वो कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा होता है ना। नाउन एंड प्रोनाउन जो कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष, नाम विशेष या संज्ञा विशेष को हम क्या बोलेंगे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन उस मैटर में भी बहुत इसेंशियल है। ओके, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग grammar. In grammar, there are various parts. Regarding parts of speech, there are 8 parts of speech. Regarding tenses, regarding adjectives, regarding what we called as what can we say? Figure of speeches. At the same time, we can deal with active, passive. At the same time, we can deal with what we called as narration. These all are the very essential parts of grammar. Okay, आज हम जो हिस्सा देखने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप देख रहे होंगे कि जो व्हाइट बोर्ड यहाँ हमने यूज किया है, कुछ मैटर लिखा है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल मैटर शॉर्टेज फॉर्म में और वो भी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में दिया गया है। Here we are discussed about degree of comparison as we called as noun or pronoun are compared with the scale of degree. Okay, noun or pronoun are compared with the scale of degree, measurement of degree, qualities. Okay, degree is nothing but the adjective. Adjective, one of the parts of speech. Okay, and that degree of comparison are being compared with 3 ways. It has 3 kinds. One, that is positive degree. Second, that is comparative degree. Third, that is superlative degree. Okay, positive degree एक simplified way में आपको ताकि वो अच्छे से समझ सके नोट करवाया that which has the similar degree of quality. For example, I am intelligent. My friend is equal intelligent. I am tall. My sister is equally same having height. Okay, so that is what positive degree. Comparative degree, it has a different degree of qualities. Different, that means it may be more, it may be less. Okay, but not equal in status. That is comparative. What is superlative? Which has shown as one and only. It is said, I am the topper. It doesn't mean there is one other topper in my class. That means I am one and only. Superlative degree. So here degree of comparison are being described in 3 ways: positive degree, comparative degree और superlative degree. अब हम बात जब degree of comparison की कर रहे हैं, which means हम बात कर रहे हैं degrees की, qualities की, in other words adjectives की. Okay, adjectives अलग अलग फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं और उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया है that qualities which means the adjectives that qualifies noun or pronoun. So noun or pronoun that are being qualifies, it means I am taller, I am more intelligent than, or she is equally intelligent as I am. It is said so. When it is being qualified such a way, it is divided with the adjectives. So adjectives को जब हम डिग्रीज में डिवाइड करते हैं, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। व्हाट डज इट मीन? यहाँ हमने कुछ चीजें बताया है कि 2 फॉर्म में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो रेगुलर या तो इरेगुलर। रेगुलर जो एक पर्टिकुलर फॉर्म को लेकर चलता है, इरेगुलर जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है, वो अपने ही मनमर्जी से चलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया है, while using
Regular or irregular while comparing it comparative or superlative. If we are using more or most, okay, ये क्या फॉर्म है? अगर हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, so that is the simplest form, that means positive degree. Okay, अगर हम कंपैरेटिव में बोलेंगे तो ईआर फॉर्म भी लगाते हैं, ईएसटी फॉर्म भी लगाते हैं, मोर भी लगाते हैं या मोस्ट भी लगाते हैं. तो इसका यूज क्या होता है? तो उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज कैसे होगा वो देख रहे हैं. सो यहाँ हम एक चीज ध्यान देख सकते हैं कि अगर कोई वर्ड जो हम ले रहे क्वालिफाइंग वर्ड, ओके, और एडजेक्टिवल वर्ड जो ले रहे जिसमें 6 लेटर्स है या उससे ज्यादा लेटर्स है, हम काउंट कर लेंगे और अगर ऐसा है तो वहां पर मोर या मोस्ट लगेगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ. यहाँ हमने एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि डिफिकल्ट, द वर्ड डिफिकल्ट इट्स एन एडजेक्टिव, ओके, इट इज पॉजिटिव. इफ वी हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सो हमने अल्फाबेट काउंट किए, दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. That means the word difficult has 9 alphabets letters. So ये more than 6 है या 6 या उससे ज्यादा है, तो इसके साथ हम more और most को यूज कर सकते हैं. So when we are using more or most while converting it into comparative to superlative, when the word has either 6 letters or more than 6 letters. Okay, so यहाँ हमने difficult word का यूज किया है, so हम बोलेंगे more difficult or most difficult. There is one other word just like intelligent, just like beautiful, with which we are using the same more or most. Second, that we can use ER or EST form. If there are 3 letters, आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसका एक स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं और जिसमें ये पूरे के पूरे रूल्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पूरे लिखे हुए, आप बिल्कुल उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So if the word has 3 letters, okay, and especially कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, इसके बीच का फर्क तो मालूम होना चाहिए आप बच्चों को, फिर भी दोहरा देते हैं. कॉन्सोनेंट एंड वॉवल. वॉवल, देयर आर 5 वॉवल्स, A, E, I, O and U. कॉन्सोनेंट लीविंग दैट 5 वॉवल्स. सो अगर किसी वर्ड की एंडिंग लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है तो वो डबल करके उसके साथ ER एंड EST फॉर्म लगता है. ठीक है, वर्ड 3 लेटर्स का होना चाहिए और उसका लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए. ठीक है, तो वो रिपीट होके ER और EST फॉर्म यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वर्ड लिया है FAT, फैट. FAT 3 लेटर्स, T कॉन्सोनेंट है या वोवल है? ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट है. सो जब हम यूज करेंगे तो वहां मोर फैट या मोस्ट फैट नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या आएगा? फैटर एंड फैटेस्ट, डबल T ER एंड डबल T EST. Are you getting the point? Is it understood? I hope. Second part is that irregular form. What is irregular? जैसे कि आपसे डिस्कस किया, irregular which do not follow any rule. उनका कोई रूल ही नहीं, फ्री स्केल है ना? जैसे हम many more बोल सकते हैं, है ना, या गुड, बेटर एंड बेस्ट बोल सकते हैं. देखिए दोनों फॉर्म में आप देखेंगे, अगर हम ER फॉर्म और EST फॉर्म लगा रहे हैं, ER EST, तो वहां पर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3 लेटर होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर 4 लेटर है तो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी ER और EST फॉर्म ले रहा है. मोर मोस्ट का क्या है? एटलीस्ट 6 लेटर होना चाहिए, लेकिन देखिए मेनी का 4 लेटर ही है. सो ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते, लेकिन एक फॉर्म हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारे स्टडी पर डिपेंड करता है. एज मच यू विल रीड, एज मच यू विल अंडरस्टैंड, दैट मच यू कैन यूज देम. ओके, इज इट अंडरस्टूड इन दैट? इज इट अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड. अब ये तो हुआ किस तरह से क्वालिटीज, दैट मीन्स क्वालिटी गिविंग वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करें, है ना. हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की. एक बार फिर दोहरा दे, ये पूरा का पूरा डाटा आपको सोशली सोशल चैनल में मिल जाएगा. आपको बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक अगर पसंद आए तो करिए. अगर कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर आपको लग रहा है चेंजेस चाहिए, पॉसिबल चेंजेस की उम्मीद रखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो लिखकर भेज सकते हैं. हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की. ये सब सिंपली कुछ रूल्स है जिसके जरिए हम एडजेक्टिव्स को कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में. अब हम सीधा बढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरफ, जहां 3 फॉर्म में हम इसे डिवाइड किए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. अगर आप चाहे
फटाफट इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे रब करते हुए कुछ और हम आगे बढ़ सके. ओके, विद इन 2 minutes. I hope it is done. It is understood or not? Please try to tell me, try to end me, try to write something so that I can understand what to provide next. Okay, degree of comparison. Just to understand the point of view very clearly for the simplest student, for the simplest one as well, for the person who does not have any idea about grammar as well. जिनको ग्रामर का कोई आइडिया नहीं, वो भी अगर अच्छी तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझना चाहे तो समझ सके. इतनी ही सरल भाषा में इसे समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं. हमारे बच्चों के साथ हम जो बहुत ही सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं वही सेंटेंस आपके साथ भी हम शेयर करेंगे. ओके, इनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया क्योंकि 3 अलग अलग फॉर्म में डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लिया जाता है. वो डिवाइड तो किया है काइंड्स, दैट मींस पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड व्हाटएवर, बट उसके साथ साथ उसमें यूज किए गए रूल्स भी थोड़े अलग है. तो उन रूल्स के हिसाब से हमने 3 पैटर्न्स में उसको डिवाइड किया है. सो पहला पैटर्न हम देख लेते हैं, साथों साथ हम दूसरा पैटर्न भी देखेंगे. दैट पैटर्न फर्स्ट एंड पैटर्न सेकंड. ओके, जिसमें दोनों होंगे, सुपरलेटिव भी होगा, कंपैरेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा. ओके, तो शुरुआत हम पहला करते हैं सुपरलेटिव से ही. ओके, पैटर्न फर्स्ट. Pune is one of the city that I like most. That is my dream to go there, and that's why I have taken the example of Pune. Okay, superlative. That means the best. What we said. Okay. Try to see, focus towards. You can see here pattern first superlative. What we have done, that we have used the most beautiful. See, more and most, the rule. It must have the word or the qualifying word must have more than 6 or 6 letters. Okay, the word beautiful has more than 6 letters. That's why it is being most. Okay, so Pune is the most beautiful city in India. Here we are going little upwards, that is with comparative degree. Okay, same. आप देख सकते हैं यहां पर हमने नोट किया, द पुणे इज मोर ब्यूटीफुल, मोर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. इसके साथ एक और ऐड भी कर लेंगे, दैट इज पॉजिटिव डिग्री. ओके, कैन यू ऑब्जर्व? Yes, no other city in India is as beautiful as Pune. Full stop. That is very essential to add at the last. Okay. So हमने पैटर्न फर्स्ट का तीनों फॉर्म देख लिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इज इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व? मेक इट स्क्रीनशॉट एज वेल. आपने देखा सुपरलेटिव में द मोस्ट ब्यूटीफुल आया, वही कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर आया, और पॉजिटिव में स्टार्ट कैसे हुआ है? नो अदर से हुआ है.
एंड आया है एज ब्यूटीफुल ऐसे, ये पॉजिटिव का नेचर ही है, एज एड ही होगा, स्टार्ट नो अदर से हो ना हो, लेकिन एज उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल आना ही आना है, एनी अदर रहना ही रहना है, चेंज हो सकता है मोस्ट में भी, लेकिन अगर हम पैटर्न के हिसाब से जाए तो फर्स्ट पैटर्न में यही फॉर्म आएगा, दैट पॉजिटिव मस्ट बी बिगिंस विथ नो अदर, विथ एज comparative will more than any other, and superlative the most. Okay, with same pattern second with superlative. See the difference. आप देख सकते हैं yes cities in India. Okay, Pune is one of the most beautiful cities in India. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुणे इज वन ऑफ द, यहाँ पर द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसमें का फासला क्या है हम पूरा कंप्लीट करने के बाद जरूर डिस्कस करेंगे, बस डिफरेंस देखते जाइए, यहाँ पर द मोस्ट है सुपरलेटिव में, और यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल किया है, ठीक है। सेम एज कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में क्या आएगा, देखिए it is same written, कुछ तो फर्क दिखेगा, क्या फासला दिख रहा है देखिए जरा, है ना, पुणे इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, सेम एज पॉजिटिव, जरा ध्यान से इसे ऑब्जर्व करें, इट इज वेरी इसेंशियल, दिखा, very few cities in India are as beautiful as Pune is. आपको क्या कहा था, पॉजिटिव में एज आना कंपलसरी है, जैसे चाहे पैटर्न फर्स्ट रहे या पैटर्न सेकेंड रहे, लेकिन फर्क कहाँ आया, दोनों के बीच का फासला क्या है, सुपरलेटिव जिसका मतलब है एक ही है, उसके सरीखा इकलौता है, कंपैरेटिव में दो जगह, दो चीजों की, दो व्यक्ति विशेष की, दो जगहों की कंपैरिजन किया जाता है, और पॉजिटिव में दोनों को पैरेलली, या तो दोनों बराबर या तो दोनों बराबर नहीं, इस फॉर्म में किया जाता है। लेकिन फर्स्ट पैटर्न में जैसे पुणे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल बोले हैं, इसका मतलब इंडिया में पुणे सरी की दूसरी सिटी है ही नहीं, समझ आ रहा है, पुणे इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटीज, मतलब जितनी भी इंडिया में सिटीज है, उन सभी सिटीज में क्या है, पुणे सबसे ज्यादा या मोर ज्यादा ब्यूटीफुल, इसका मतलब वन एंड ओनली ही है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल, सिमिलरली कि पुणे सरी की सिटी इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं, इसका मतलब सीधा एक ही होता है, दैट पुणे इज वन एंड ओनली सिटी विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन इंडिया, ठीक है। पैटर्न सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, पैटर्न सेकंड में क्या बोला है सुपरलेटिव में, दैट पुणे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, इसमें हम एग्जांपल के तौर पे अगर ले तो हमारे क्लास का रेशियो, हमारे क्लास में अगर हम टॉपर भी रहे, लेकिन कई बार अगर देखें तो अबोव 90 स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मींस अबोव 90 या 90% स्टूडेंट्स, दोज हु आर रैंकिंग दैट, सो अगर 90% अबोव है तो 90% मे बी यू कैन टॉपर, मे बी यू कैन द हायर रैंकर, बट इट डजंट मीन कि आप इकलौते हैं 90 अबोव या 90% वाले, हो सकते हैं 2 4 5 6 7 8 9 10 आपकी क्लासरूम में आ जाए, है ना, तो जब हम बोलेंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टैंड इन द क्लास, तो वो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे
जो 90 अबोव है, राइट। सिमिलरली यहां पर जब हम बोल रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट, इट मीन्स कि इंडिया में मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब पुणे सरी की कई सारी सिटी है, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल जिनको हम बोल सकते हैं ऐसी सिटीज है, और पुणे उनमें से ही एक सिटी है जो बहुत ज्यादा सुंदर है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पहले पैटर्न में क्या हुआ है कि पुणे सरी की दूसरी कोई नहीं है, और यहाँ क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ है ऐसा, और जिसमें से पुणे एक है। समझ आया? कंपैरेटिव मोर देन मोस्ट अदर, यहाँ फिर भी वही सेंस आएगा कि ऐसी कुछ सिटीज है इंडिया में कि जो बहुत सुंदर है, और उसमें से एक कौन है, पुणे है। वेरी फ्यू सिटीज, फिर से वही सेंस कि कुछ सिटीज ऐसी होती है, बहुत कम सिटीज ऐसी होती है जो पुणे सरी की है इंडिया के अंदर। बात समझ आ रही है? ये दो पैटर्न है, आप ध्यान रखेंगे। चाहे आपको एग्जाम में पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल दिया हो, या कंपैरेटिव का एग्जाम्पल दिया हो, या सुपरलेटिव का एग्जाम्पल दिया हो, आप सबसे पहले देखेंगे उसकी बिगनिंग या उसकी रचना कैसी है। वेरी फ्यू से अगर स्टार्ट है पॉजिटिव में और आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में करना है, तो आप मोर देन एनी अदर या फिर व्हाट वी कॉल्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं करेंगे, आपको पॉजिटिव का या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का मोर देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द मोस्ट का ही यूज करना पड़ेगा। ये मोस्ट कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखिए। ओके, हायर, हाई, हायर, हाईएस्ट जब हम बोलेंगे तो मोस्ट हाईएस्ट, क्योंकि हमने तो आपको वीडियो में बताया है कि मोस्ट लगाना कंपल्सरी, आपने देख लिया, बट हाईएस्ट ही मोस्ट होता है। सो तब हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द हाईएस्ट, है ना, द हाईएस्ट। सो ये फॉर्म आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न है उसको आप ध्यान रखेंगे। ये हो गए डिग्री ऑफ कंपैरिजन के दो पैटर्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर एक और पैटर्न भी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी विद द थर्ड पैटर्न एज वेल विद इन अ वेरी लिटिल स्पैन ऑफ टाइम। उम्मीद करते हैं दोनों पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर नहीं समझ रहे तो बार बार इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यकीनन इन पैटर्न्स को बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। ओके, पैटर्न थर्ड, पैटर्न थर्ड। ओके, ध्यान रखेंगे ग्रामर के किसी भी बुक में डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन 3 पैटर्न्स में डिवाइड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देन क्या, तो ये पैटर्न इसीलिए डिवाइड किया गया है ताकि बच्चों को बहुत ही सरलता से ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन और उसका कन्वर्जन समझ आए। ओके, अगर सेंटेंस का एक फॉर्म, एक क्वेश्चन एक फॉर्म में आया है तो उसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पॉजिटिव हो, सुपरलेटिव हो या कंपैरेटिव हो, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है वो देखकर आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे और सही सही लिख पाएंगे थर्ड पैटर्न, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे पहले। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। अब आप देखिए टॉलर ईआर फॉर्म आया है, देन माई ब्रदर। सो टॉलर देन ये जो कंस्ट्रक्शन है सीधा सीधा दर्शाती क्या है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, इसका सुपरलेटिव नहीं हो सकता, दो चीजों के, दो व्यक्ति विशेष के बीच में ये कंपैरिजन हो रहा है, इसका सुपरलेटिव नहीं हो सकता। सो पैटर्न थर्ड ऐसा है जो दो ही फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो कंपैरेटिव और नहीं तो पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। सो यहां सिंपली फॉर्म आएगा माई ब्रदर इज नॉट, एज पॉजिटिव का पहला क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी है, तो इसे एज को हम भूल नहीं सकते। माई ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज आई एम। माई ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज आई एम। आपने यहां देखा होगा कि आई एम टॉलर देन माई ब्रदर जब लिखा है तो ये दिखा रहा है अफर्मेटिव सेंस, है ना।
और वही हमने जब पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है नेगेटिव सेंस। तो इसका एक पॉइंट ये भी है कि पैटर्न थर्ड में या तो दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, पहला। और दूसरा, दिया गया सेंटेंस चाहे फिर वो कंपैरेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, उसका सेंस अगर निगेटिव आ रहा है तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जब आप करेंगे तो वो अफर्मेटिव सेंस देगा, या फिर दिया गया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंस दे रहा है तो दूसरे फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका सेंस क्या आएगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव ही आएगा। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म, पूरा का पूरा पैटर्न, डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। सोशली सोशल चैनल में आपको हम अवेलेबल होंगे। फिर एक बार जरूर नए इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।